Good morning to my all dear students of grade 8. Today, in this assignment, we will discuss the poem Peace. So, let's recite. Sweet peace, where dost thou dwell? I humbly crave. Let me once know I sought thee in a sacred cave, and asked if peace were there. A hollow wind did seem to answer, No, go seek elsewhere. So bachcha, this is poem about the peace. So the poet want to find out the peace, where the peace lives. So first of all, he is telling that he tried to search the peace in the secret cave. Where did the poet seek peace? So poet sought the peace in the secret cave. अब वहाँ पे वो पूछता है कि क्या पीस यहाँ पे है, लेकिन वहाँ से हॉलो विंड रिप्लाई करती है कि नहीं, पीस यहाँ पे नहीं है, कहीं और जाके ढूंढो. I did and going, did the rainbow note, surely thought it. This is the lace of peace coat. I will search out the matter, but while I looked, the clouds immediately did break and scatter. Now poet is saying that he looked at the rainbow note and he thought that peace must be there in the rainbow coat, and he thought that it may be the lace of a peace coat. Okay, rainbow may be a lace of the peace's coat. पीस के कोट की लेस को वो रेनबो को मानता है, और वो कहता है कि मैं इसे ढूंढ लूँगा, ये यहीं पे होगी. और वो कहता है कि जैसे वो उसे ढूंढने के लिए क्लाउड्स की तरफ जाता है, वो टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं. सो टिल नाउ ही इज़ अनेबल टू सर्च द पीस. देन वेंट आई टू अ गार्डन एंड डिड स्पाई a gallant flower, a crown imperial, sure, said I, peace at the root must dwell. But when I digged, I saw a warm dower that showed so well. But after that, he tried to search the peace in the garden. Gallant means brave. In the garden, he tried to search the peace, but there a gallant flower is there, the crown imperial. Crown imperial means a plant with the cluster of bell like flowers. वहाँ पे वो हैं, उनसे पूछता है पीस कहाँ पे है. पीस एट द रूट मस्ट ड्वेल, उसको लगता है कि पीस जो है वो रूट्स में होगी. बट व्हेन आई डिग्ड आई सा अ वॉर्म डेवर, बट जब वो उनको डग करता है, वो देखता है कि वहाँ पे एक हंग्री, क्विक ईटिंग एंड हंग्री वॉर्म इज़ देयर ओनली, नो पीस इज़ देयर, बट श्योर सो वेल, जो भी उसको दिखाई देता है. पीस वहाँ पे नहीं है. वेयर डिड द पोइट फाइंड द फ्लावर? द पोइट फाइंड द फ्लावर इन द गार्डन. एट लेंथ आई मेट अ reverend good old man, whom when for peace I did demand, he thus began. There was a prince of old at Slame dwelt, who lived with good increase of flock and fold. रेवरेंड मीन्स मेंबर ऑफ क्लर्जी, क्लर्जी का एक मेंबर. फिर वो रेवरेंड को मिलता, जो कि एक ओल्ड मैन है, वहाँ से पूछता है कि पीस कहाँ पे है. आई डिड डिमांड, ही दस बिगेन, तभी वो बताता है देयर वॉज अ प्रिंस ऑफ ओल्ड, एक प्रिंस था वहाँ पे, एट स्लेम. स्लेम मीन्स, स्लेम इज़ द अनदर नेम ऑफ जेरूसलेम. सो डेफिनेटली दे आर टॉकिंग अबाउट जीसस क्राइस्ट. Dwelt, who lived with good increase of flock and fold. Fold an enclosure for sheep. तो वो they are talking about Jesus Christ. तो वो मैन ऑफ क्लर्जी उसको बताता है कि मे बी उसको पीस जो है जीसस क्राइस्ट के पास मिले. He sweetly lived, yet sweetness did not save his life from foes. But after death, out of his grave, there sprang 12 stalks of wheat, which many, wondering at, got some of those to plant and set.
वो कहता है कि वो शांति से रह रहा था, प्यार से रह रहा था, लेकिन उसके दुश्मनों को ये पसंद नहीं था, इसीलिए उसको मार दिया गया। ही इज़ टॉकिंग अबाउट द जीसस क्राइस्ट ओनली। आफ्टर डेथ 12 स्प्रैंग्स ऑफ द स्टॉक ऑफ वीट, जो वीट है उसके 12 स्टॉक्स जो है वहाँ पे निकलते हैं, जिनको अलग अलग जगह पे लगाया गया, प्लांट किया गया, प्लांट के तौर पे उनको सेट किया गया, मे बी पीस वहाँ पे हो। वट स्प्रंग फ्रॉम द ग्रेन 12 स्टॉक ऑफ वीट। It prospered strangely and did soon disperse, though through all the earth, for they that taste it do rehearse that virtue lies therein, a secret virtue, bringing peace and mirth by flight of sin. Virtue means goodness, disperse means spread. तो जो वो 12 स्टॉक्स हैं उनको स्प्रेड कर दिया गया, अलग अलग प्लेस पे लगा दिया गया अर्थ पे। अब उनमें से अच्छाई जो है वो बाहर आ रही है। अच्छाई किस तरीके से आ रही है? दे आर द पार्ट ऑफ द ग्रेव ऑफ जीसस क्राइस्ट। सो जो उनकी अच्छाई थी वो इन स्टॉक्स के रूप में बाहर आ रही है, और वहीं पे ही मे बी पीस हो, और मिथ मीन्स हैप्पीनेस, वहाँ पे खुशी है, पीस है, हैप्पीनेस है, बट पाप जो है वहाँ से चले गए हैं। टेक ऑफ दिस ग्रेन विच इन माई गार्डन ग्रोज एंड ग्रोज फॉर यू। अब पोइट कहता है कि ये ग्रेन ले लो जो मेरे गार्डन में है और तुम्हारे लिए है। वेयर डज द ग्रेन ग्रो? इट ग्रोज इन द गार्डन ऑफ द पोइट। मेक ब्रेड ऑफ इट, इससे ब्रेड बनाओ, एंड दैट रिपोज एंड पीस विच एवरीवेयर विद सो मच earnestness you do pursue, it is only there। और वो कहता है इस ब्रेड से तुम्हें पीस मिलेगी। ब्रेड से पीस कैसे मिलेगी बेटा? ब्रेड से खाना मिलेगा, खाने से पेट भरेगा, पेट भरेगा शांति रहेगी, शांति मीन्स पीस। सो यू विल ऑटोमेटिकली gain it if you are doing good deeds and you are earning too much to fulfill your stomach. Thank you.